Hi everyone, my name is Reema and I welcome you all to my YouTube channel. आज का टॉपिक क्या है? It is Goodwill. Now this video is for whom? For the ones who are preparing for NTA UGC NET exam and for the students who are doing their BCom or MCom. Okay, so the commerce students, basically this video is for you. We will be discussing everything about Goodwill. Okay, so stay tuned. Now, let me give you a quick overview about all the details and all the topics we will be doing in today's class. Of course, first the thing is meaning and definition. Along with that, features, types of goodwill, which includes purchased goodwill and non-purchased goodwill. Non-purchased का क्या नाम है? Inherited goodwill. Along with this, some zoological classification of goodwill. Now, this may be new for you. Along with that, what is the need for value goodwill, need for valuation of goodwill, factors affecting goodwill, and most important, methods of goodwill. Along with this, some practical questions. Okay, let's begin with the meaning and definition of goodwill. So, let me give you a quick overview about goodwill को कैसे define करेंगे. आप थोड़ा सा समझाती हूँ आपको. आप अपने लोकल एरिया में आपका कोई ऐसे सर होंगे या कोई ऐसे मैम होंगे जो एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते. फॉर एग्जांपल अन अकेडमी में राघव वाधवा सर हैं जो टैक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो उनकी रेपुटेशन है. सिमिलरली अगर हम अपने रेस्टोरेंट्स की बात करें तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट होगा जिसका खाना बहुत अच्छा है, या कोई ऐसा सैलून होगा जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो आप बार बार उन्हीं से पढ़ना या उन्हीं रेस्टोरेंट या सैलून्स में जाना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन. एंड दिस रेपुटेशन इज व्हाट? इट इज गुडविल. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड. गुडविल इज दैट एलिमेंट विच अराइजेस फ्रॉम द reputation connection and other advantages. ये other advantages हम आगे पढ़ेंगे, which are possessed by a business which enables it to earn greater profits, because आप बार बार उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से पढ़ेंगे या उन्हीं रेस्टोरेंट से सर्विसेज अवेल करेंगे. ओके, than the returns normally to be expected on the capital represented by the net tangible assets employed in the business. मेरे एक बिजनेस में इतने टैंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, ये नेट एसेट्स हैं, उसके अलावा और उसके ऊपर कितने और मेरे प्रॉफिट्स होंगे वो कौन डिटरमिन करता है? गुडविल. ओके, नेक्स्ट इज इट इज द एक्स्ट्रा सेलेबल वैल्यू अटैचिंग टू अ प्रॉस्परस बिजनेस बियॉन्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. ये हमने अभी समझा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. Goodwill, according to Kohler, goodwill is the current value of expected future income. ठीक है, आज की वैल्यू किसकी? फ्यूचर में जो इनकम होगी उसकी आज की वैल्यू क्या है? इन एक्सेस ऑफ व्हाट? ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेट टैंजिबल एसेट्स. ठीक है, तो ये है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल. आगे और समझते हैं इसको. Now let's talk about features of goodwill. Some very unique features of goodwill I'll be telling you. First, goodwill can never be sold. आप ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक रेस्टोरेंट है वो अपनी गुडविल बेचते, अलग से नहीं बेच सकते. Why? What is the reason? Because it is intangible asset. Intangible is something which you cannot see or touch. Okay, so here it is. Goodwill can be sold only when the entire business is sold. पूरे बिजनेस के साथ ही गुडविल साथ में जाती है, अलग से नहीं बेच सकते. और इट कैनॉट बी सोल्ड सेपरेटली एक्सेप्ट ऑन एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, when new partner compensates the old partners or the retiring partner gives up him share rights in favor of the remaining partners. इस केसेस में आप गुडविल अलग से कर सकते हैं, सेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन ऑन ट्रांसफर. गुडविल की वैल्यू कब डिटरमिन होगी? जब उसको आप ट्रांसफर करने लगेंगे. अगर ट्रांसफर ही नहीं करना तो उसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं होगी. ठीक है, गुडविल इज वैल्यूएबल ओनली इफ इट इज केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन और वन कंपनी टू अनदर.
Okay. If it cannot be transferred, then there will be no value of goodwill. ठीक है. Next one is intangible value. Intangible, I have already told you the meaning, which cannot be seen or touched. Goodwill represents a non-physical value. Non-physical मतलब जो नहीं दिख सकती. Over and above physical assets. ठीक है. आपके फॉर एग्जाम्पल 25 लाख के फिजिकल एसेट्स हैं. फिजिकल एसेट्स में क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी. इसके अबव, इसके बियॉन्ड, इससे ज्यादा कितने मेरे एसेट्स हैं? अगर मेरे एसेट्स की टोटल वैल्यू है 30 लाख, जिसमें से 25 लाख के मेरे नेट फिजिकल एसेट्स हैं, तो बाकी के 5 लाख कितने हुए? गुडविल. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है. नाउ गुडविल कैनॉट हैव एन एग्जैक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट कॉस्ट, बिकॉज व्हाई? एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग due to changes in internal or external factors which ultimately affect the fortune of the company. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आज एक कंपनी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो उसकी गुडविल बहुत हाई है. अब कल को कुछ ऐसा स्कैम हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी रेपुटेशन एकदम लो चली जाती है. ठीक है. तो गुडविल की जो वैल्यू है ना, वो ऊपर नीचे होती रहेगी. नेक्स्ट वन इज सब्जेक्टिव जजमेंट. The value of goodwill is based on subjective judgment of the valuer. कैसे? इसके ना कई मेथड्स होते हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालनी है. तो वो उन मेथड्स में से कौन से एक मेथड को सिलेक्ट करना है, इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज वैल्यूइंग इट, ऑन द वैल्यूएवर. सो दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट. ऑल राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज एमोर्टाइजेशन. कोई भी एक एसेट होता है एक्सेप्ट लैंड, उस एसेट की वैल्यू ना हर साल कम होती रहती है. अब आपको पता है, जैसे ये एक पेन है, ये अगर 500 का है तो हर साल या हर महीने, मतलब साल तो क्या, हर महीने और हर टाइम के बाद, एग्जाम्पल लेते हैं साल का, हर साल बाद इसकी वैल्यू कम होती रहेगी. अगर ये फिजिकल एसेट है, टैंजिबल एसेट है, तो ये जो डिक्रीज होती है ना वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन. लेकिन अगर वो गुडविल है या कोई और इंटैंजिबल एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, उस पर क्या लगती है? एमोर्टाइजेशन. हियर इट इज रिटन गुडविल इज intangible asset and its wear and tear is called amortization rather than depreciation. Okay, these were the features. Moving ahead with the types of goodwill. So the first one is purchased goodwill, जो आप खरीदते हैं. दूसरी one है, the second one is non-purchased goodwill. We call it as inherited or raised goodwill. So let's understand them in detail. First one being purchased goodwill. It is that goodwill which is acquired by a firm for a consideration. जो आप खरीदते हैं. Now that consideration can be in what? या तो पैसा देंगे, कैश देंगे, या in kind. ठीक है. Now coming on to the features of purchased goodwill. Very important. It arises on purchase of a business. Okay. Second one is it is shown as a asset in balance sheet. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, कि कौन सी गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई जाती है? इज इट परचेज्ड गुडविल और इज इट नॉन परचेज्ड गुडविल? सो द आंसर विल ऑलवेज बी परचेज्ड गुडविल. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज amortized at the earliest as per accounting standard 26. Intangible assets prescribes that normally tangible assets should be written off within 10 years. That is why at earliest. Now next one is self-generated. जो खुद ही एक बिजनेस खुद से जनरेट करता है अपनी अच्छी एक्टिविटी से, अच्छे प्रोडक्ट्स देके, सर्विसेज देके, जो वहां से जनरेट करता है और परचेज नहीं करता. आइए उसके बारे में समझते हैं. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन, but it is earned by the efforts of the management. Okay, it is an internally generated goodwill which arises from number of factors. ये factors हम आगे पढ़ेंगे that a running business possesses. So let's talk about features. It is internally generated. Okay,
and it normally generates over many years. Next one is its valuation is subjective. ठीक है, मतलब जो पर्सन इसकी वैल्यू करेगा, इट रियली डिपेंड्स. अगर कोई ए पर्सन इसकी वैल्यू करता है 10 लाख, तो हो सकता है बी पर्सन इसकी वैल्यू करे 10 लाख. तो ये वेरी सब्जेक्टिव टर्म है. इट डिपेंड्स अपॉन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर. ओके, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. यहाँ कौन सा पढ़ा? यहाँ भी 26 पढ़ा. यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? इट प्रिस्क्राइब्स दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट accounted as an asset. If it is not accounted as an asset, it means इसकी वैल्यू बैलेंस शीट में आप नहीं लिखेंगे. किसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे? परचेज गुडविल की कि नॉन परचेज की? नॉन परचेज की वैल्यू कभी बैलेंस शीट में नहीं आएगी, सिर्फ परचेज गुडविल की आएगी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. ओके, मूविंग अहेड. Now this picture is from my own notes. I pardon for my handwriting if it is too bad. Coming on to the zoological classification of goodwill. First one is dog goodwill. अब आप डॉग के फीचर्स को समझिए, सोचिए. एक डॉग हमेशा अटैच्ड खुद से नहीं होगा, अपने ओनर से होगा. तो ऐसी गुडविल which is attached to a specific person but not a place, that is known as dog goodwill. मतलब it remains faithful towards the person. कोई ऐसे इतने अच्छे एडुकेटर है, आप हमेशा उनको फॉलो करेंगे. आप ये नहीं देखेंगे कि वो कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं एडुकेटर से आप पढ़ना चाहेंगे. तो दैट गुडविल इज अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट अ प्लेस. कौन सी होती है? डॉग गुडविल. नेक्स्ट वन इज कैट गुडविल. अब एक कैट कभी एक पर्सन से अटैच या अपने ओनर से अटैच नहीं होती. इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू अ स्पेसिफिक प्लेस. ठीक है, अटैच्ड टू अ प्लेस रादर देन पर्सन. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज रैट गुडविल. अब रैट क्या होता है? रैट का काम होता है सिर्फ अपना पेट भरना, या ये कभी एक पर्सन से या कभी किसी प्लेस से या किसी ओनर से अटैच नहीं होगा. इसका काम है अपना पेट भरना. ठीक है, इट इज नीदर अटैच टू प्लेस और अ पर्सन, और सिर्फ अपना पेट भरने से इसका मतलब रहता है. एंड व्हाट इज द की पॉइंट? स्मॉल इन वैल्यू. या तो इस गुडविल की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी या बिल्कुल नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट वन इज रैबिट गुडविल. अब रैबिट्स दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ गोइंग टू फार. ठीक है, तो जो नियरनेस या लोकल मार्केट वैल्यू जो आपके पास के है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऐसे पास में एक कैफे होगा या रेस्टोरेंट होगा जिसमें बहुत सारे आपके लोकलाइट्स जाते हैं, तो वो नियरनेस पे डिपेंड करता है. ठीक है, एंड दैट गुडविल इज रैबिट गुडविल. ओके, सो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट वन वाज डॉग, second one was cat, third one was rabbit, third one was rat, and fourth one was rabbit. And let me come up again, I'm so sorry. First one is dog, second one is cat, third is rat, and fourth is rabbit. Okay, moving ahead. Why do we need to value goodwill? क्या जरूरत है? अब हर एक टाइप ऑफ बिजनेस की अलग अलग जरूरत होगी. ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस में कौन से आएंगे? तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, या पार्टनरशिप हो गया, या कंपनी हो गया. ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं. टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक पर्सन जब बिजनेस करता है, जब कोई बिजनेस बेचना हो, व्हेन द बिजनेस इज टू बी सोल्ड, व्हेन अ न्यू पर्सन इज एडमिटेड इन द फर्म. ठीक है, या व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप, और व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंपनी फॉर टैक्सेशन पर्पस. जब ये एक सिनेरियो आए, तब आप सोल प्रोप्राइटर में क्या करेंगे? वैल्यू की, गुडविल की वैल्यूएशन. ठीक है, अगली बात आती है पार्टनरशिप की. यहाँ पे कौन कौन से केसेस में आप वैल्यू करेंगे गुडविल को? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कब कब होती है? एडमिशन पे, रिटायरमेंट पे और डेथ पे ऑफ अ पार्टनर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज when two firms are amalgamated, मतलब जुड़ती हैं. when two firms are amalgamated. And the last one is when the firm is sold to another person or another firm or another company.
इन केसेस में एक पार्टनरशिप की वैल्यू की जाती है गुडविल। आगे चलते हैं। कंपनी के केस में ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं? पहली, when the business of the company is to be sold to another company, or first one was sold, or when the company is to be amalgamated with another company, या टेक ओवर हो जाती है। ठीक है, या तो आप बेच दो, या अमेलगमेट हो जाए, या आपकी कंपनी को किसी और ने टेक ओवर कर लिया। इन केसेस में आप करेंगे वैल्यू गुडविल। अगली बात आती है when the value of shares cannot be estimated accurately for taxation purpose। ठीक है, आपके कंपनी के शेयर्स की वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे कितनी है, लेकिन वो उसकी वैल्यू चाहिए, क्यों? टैक्सेशन पर्पस के लिए। और when they have to be purchased by the buyer to exercise control over your company, इन केसेस में भी गुडविल की वैल्यूएशन होनी चाहिए। When the company has previously written off goodwill, पहले उसने राइट ऑफ कर ली गुडविल, लेकिन अब उसको दोबारा लिखनी है and it wants to write it back, तब भी you need to value it. And the last one is the extra amount which is paid by the purchaser or charged by the vendor। ठीक है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट कोई परचेजर देता है या जो सेलर होता है वो लेता है, is what is goodwill. So they require their accountants to investigate the value so declared to be attached to the goodwill। जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं ना, वो अपने अकाउंटेंट्स को बोलते हैं कि आप एस्टिमेट करिए क्या ये सही अमाउंट दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा, उसके लिए अपने अकाउंटेंट्स को बोलते हैं। और ऐसे केसेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योर गुडविल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स विच अफेक्ट गुडविल। आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फूड वगैरह या सर्विसेज में सैलून वगैरह एग्जाम्पल आ सकता है। लोकेशन क्या है आपके बिजनेस की, क्या वो काफी आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है या काफी वो ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहाँ काफी लोग आते हैं, तो वो डिटरमाइन होता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, अब एक ब्रांड है ममा अर्थ इस नाम से, वो एनिमल्स पे टेस्ट नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनके प्लास्टिक फ्री होते हैं। तो ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो काफी ख्याल रखती है एनवायरनमेंट का, उनकी गुडविल भी ऊपर जाती है। प्रॉफिट्स कितने कमा रही हैं, एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, अपने इन्वेस्टर्स को कितना पैसा रिटर्न कर रहे हैं, किस टाइम पे बनी है ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो सालों से चलती आ रही है ना, जैसे टाटा, तो उस पर उतना हम ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट क्या होता है? गुडविल। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी है तो उस पर उतना ट्रस्ट नहीं होता। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट हाउ आर यू ट्रीटिंग योर एम्प्लॉयज, ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप कितने रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस में, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपकी कंपनी को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को? अगर हाँ तो गुडविल अच्छी है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट कल्चर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर अपनाते हैं। ठीक है, CSR एक्टिविटीज, दे आर मोर और लेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स। CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपटीशन कितना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा लगा रहे हैं आप, आपके पास कितने ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स, और कितनी इनोवेशन करते हैं आप। ये सारे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत होंगे जो अफेक्ट करते हैं किसको, वैल्यू ऑफ गुडविल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट मेथड्स फॉर वैल्यूइंग गुडविल। इसके हमारे 5 मेथड्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज आर्बिट्रेरी मेथड। ओके, आर्बिट्रेरी में क्या होता है, मतलब एस्टिमेट लगाना। और ये एस्टिमेट कौन लगाएगा? वो या तो परचेज कर रहा है या तो वो जो सेल कर रहा है। अगर इन दोनों से भी एस्टिमेट ना लगे तो हो सकता है वो किसी थर्ड पर्सन को बोले। सिर्फ यही होता है आर्बिट्रेरी मेथड में। ओके, सेकंड वन इज एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, ये पढ़ेंगे। अगला है सुपर प्रॉफिट्स मेथड, ये भी पढ़ेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, ये हम पढ़ते हैं अब। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। पहला है मेरा मेथड, सॉरी सेकंड है, पहला तो आर्बिट्रेरी है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको पहला बोला है। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, एवरेज क्या होती है किसी चीज की, आपको पता है ना। सो गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी? एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज।
ठीक है, आपको लग रहा होगा ये एडजस्टेड क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। एवरेज प्रॉफिट्स तो आपको पता ही है, अगर 10 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे हैं तो उनको टोटल करके डिवाइड करेंगे 10 साल से, तो आपकी ये एवरेज आ जाएगी। अब आप ये भी पूछेंगे कि मैम ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, तो पहले वो देखते हैं। ईयर्स ऑफ परचेज इज द नंबर ऑफ ईयर्स बेनिफिट इज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द पास्ट एसोसिएशन। कितने सालों तक उसका बेनिफिट चलता रहेगा, this is years of purchase. Okay, now let's talk about adjusted average profits. total profits में से ना आप पहले total profits निकाल लो, उसमें से जो abnormal gain मतलब वो गेन जो मेरा हमेशा नहीं होता, once in a while होता है, वो गेन को जो आपने पहले ऐड किया था ना उसको माइनस कर दो, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है। ऐड करो एबनॉर्मल लॉस को आपने क्या किया हुआ था, माइनस। लेकिन अब आप ऐड करेंगे क्यों, क्योंकि वो रेगुलर नहीं है, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने का क्या मतलब है, एवरेज निकालना। अब एक और तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स। इसमें क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। इसका एग्जाम्पल करेंगे, चलिए एग्जाम्पल ही देखते हैं हम। ये एक सॉल्यूशन की है इमेज, यहाँ पे प्रॉफिट्स आपको दे रखे होते हैं, ठीक है, हर साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो हमने क्या ऐड किया, या मैं आपको एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स बताऊंगी। अब इनके एग्जांपल्स आपको और क्लैरिटी होगी। देखिए यहाँ पे आपने क्या ऐड किया है, मेजर रिपेयर, आपने एक रिपेयर करवाई, इट वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब आपने P&L में से इसको माइनस किया था, बट इट हैज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी P&L में से माइनस होता ही नहीं है, लेकिन आपने तो इसको माइनस किया था, गलती करी ना, चलो ऐड बैक कर लो अब इसको, ठीक है। आपने इसको ऐड बैक किया, 2014 में हुआ था। ऐड बैक करने के बाद आपकी कुछ ये वाली फिगर्स आ गई। अब क्या किया है इन्होंने, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एट द रेट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ये नॉर्मल एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन हर साल लगती है, तो आप इसको रिस्पेक्टिवली माइनस करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। 30,000 में से 4 महीने की है, बिकॉज आपने इस साल ये परचेज करी थी, इस महीने ये परचेज करी थी, तो बाकी के रिमेनिंग कितने रह गए, 4 महीने रह गए। 10% लगा के 1,000 आ गई। अब 30,000 में से 1,000 माइनस करो, कितना बचा आपके पास, 29,000 पे 10% कितनी आई, 2,900। ओके अब उसके बाद ये माइनस करने के बाद आपकी ये वाली वैल्यूज आ गई। फिर अभी एक और चीज देखो, आपने ना 2013 में ओवर वैल्यू कर दिया था, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया था, कोई बात नहीं, बढ़ा दिया, माइनस कर देंगे, ठीक है, लेस कर देना इसको 2013 में से। अब माइनस करने के बाद आपकी ये वैल्यूज आ गई। अब आपने कोई चीज क्लोजिंग स्टॉक जब आपने ओवर वैल्यू किया था, इसका क्या मतलब है, आपने अपना जो ओपनिंग स्टॉक है ना उसको अंडर वैल्यू किया था, तो कोई बात नहीं, उसको ओवर वैल्यू कर दो, ऐड बैक कर दो। आपने उसको कम कर दिया था, अब उसको ऐड बैक कर दो। कैसे करेंगे, 2014 में इसको ऐड करेंगे 12,000 को, फिर आपकी ये वैल्यूज आ गई, और मैनेजमेंट की कॉस्ट जो कि रेकरिंग है, जो कि रेगुलर है, वो माइनस करके आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए। अब इन 4 सालों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके क्या आएंगे, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे, क्या आ जाएगी, गुडविल। चलो देखते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए इन चारों को ऐड करना है, डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा, एक साल का एवरेज 101,275 इंटू 3 करेंगे, 3 इज व्हाट, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या मेरी गुडविल आ गई, 303,825। ऑलराइट, अब इसको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। तो आपने ये तो यहाँ पे निकाल लिए, ये आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं, और इनके साथ आपने वेट्स असाइन कर दिए 1 2 3 4, इंटू कर दो, ठीक है, इंटू 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 इंटू, क्या रिजल्ट आ गया आपका, ये सब। अब ये टोटल आएगा, इस टोटल प्रोडक्ट को जब आप डिवाइड करेंगे किससे,
टोटल ऑफ वेट्स, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल देखो यहाँ पे किया हुआ है ना 109640, ये क्या आया आपका एवरेज प्रॉफिट आया है। अब गुडविल के लिए क्या करना होता है, हमें ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई इनटू 3 करेंगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगी गुडविल की। ठीक है, बहुत सिंपल है। सारे प्रॉफिट्स को ऐड करो, डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर से, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, इनटू करो किससे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इससे क्या आ जाएगा, गुडविल। ओके, अगले मेथड में चलते हैं, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। इसमें क्या है मेथड, फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, हमें ईयर्स ऑफ परचेज पता है ना, अब सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं, एवरेज प्रॉफिट्स जो हमने सीखा माइनस व्हाट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब आप पूछेंगे अभी नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, आइए वो देखते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आपकी बिजनेस के कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख और रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो आप मुझे बता सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने आए, 1 लाख। ठीक है, अब आप पूछेंगे मेरे से कि ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर सिर्फ ओपनिंग दे रखी है, अगर सिर्फ क्लोजिंग दे रखी है, तो उस केस में क्या होगा, देखो ओपनिंग प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, और अगर क्लोजिंग है तो उसका क्या होगा, माइनस करेंगे आप हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। ओपनिंग में प्लस करेंगे, पूरी नहीं, हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, और क्लोजिंग होगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो माइनस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, आपके दो अप्रोचेस होते हैं, या तो लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस करेंगे क्या, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एसेट साइड अप्रोच में नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस व्हाट, वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, ऐसे निकल गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, सुपर प्रॉफिट्स का क्या होता है, सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, सुपर प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट, इनटू रेट क्या दे रखा है। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं हमें 4 लाख, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 14 लाख। ठीक है, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10% एंड गुडविल हैज टू बी टेकन एज 4 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। यहां से पता चला हमें कि हमें सुपर प्रॉफिट्स वाला मेथड यूज करना है, तो लिखते हैं super profits is what, average profits, are they given, yes they are given, minus what, minus normal profits। normal profits दे रखे नहीं दे रखे। अब normal profits कैसे निकलते हैं, it is capital employed into rate। क्या हमें रेट दे रखे हैं, हाँ हमें रेट दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज निकालते हैं, या एवरेज नहीं है सिर्फ ओपनिंग दे रखी है, तो चलिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। ओपनिंग क्या था फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट्स। ओपनिंग कितनी है मेरे पास 14 लाख प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स कितने हैं मेरे 4 लाख, करंट ईयर प्रॉफिट्स 4 लाख। ठीक है, हाफ ऑफ 4 लाख हाउ मच, 14 प्लस 2 16, यहां से कट गया ना 2 लाख यहां से हो गया, तो 14 प्लस 2 16 लाख। 16 लाख हो गया मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिखती हूँ 16 लाख, रेट कितना है 10%, तो क्या हो गया 1,60,000। क्या है मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं 4 लाख माइनस 1,60,000, कितना आ गया, कितना आ गया
2,40,000 is what? Is our super profits. Now when you will multiply 2,40,000, गुडविल का क्या फॉर्मूला था? सुपर प्रॉफिट्स इनटू ईयर्स ऑफ परचेज. 2,40,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 साल से, जो कि मेरे ईयर्स ऑफ परचेज हैं, क्या आ जाएगी? मेरी गुडविल. ठीक है, आपको मैंने अप्रोच समझा दी, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. अब आगे चलते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द कैपिटलाइजेशन, बिकॉज हमारे मेन मेथड्स हो गए, हमने 90% कवर कर लिया. नाउ जस्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन इज लेफ्ट. लेट्स अंडरस्टैंड द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. सुपर प्रॉफिट्स की कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स. हमें आते हैं निकालने. क्या था इसका? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100. फॉर एग्जाम्पल सुपर प्रॉफिट्स आपके 20,000 थे. ठीक है, आपका रेट क्या है? 10%. परसेंट मतलब इनटू 100 आप हमेशा करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 लाख. ऐसे आपकी गुडविल आ जाएगी. ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं. सुपर प्रॉफिट्स है मेरे. सुपर प्रॉफिट्स आर अमाउंटिंग टू 10,000. ओके, नाउ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. अब गुडविल कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट जो मैंने लिख लिए, मैं डिवाइड करूंगा रेट से. ठीक है, क्या आ गया? 1 लाख. ये 1 लाख क्या है? मेरी गुडविल. ऑलराइट, ये बहुत इजी है. ऐसी इजी है हमारा नेक्स्ट मेथड जो है लास्ट मेथड, एंड इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड. नाउ हाउ यू कैलकुलेट गुडविल हियर? अ लिटिल डिफरेंट. कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. अब आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, हमने कर लिया. आपके लिए क्या न्यू टर्म है? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स. ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सुनो, एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100. ठीक है, क्वेश्चन करें. एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 10,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%. और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 50,000. चलिए करते हैं. सबसे पहले हम कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं. हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स दिए रखे हैं. कितने? फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय रेट इनटू 100. एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 10,000. रेट कितना है? 10% है, तो इस वजह से हम इसको यहां से कर रहे हैं. तो हमारे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट्स कितने हैं बच्चों? 1 लाख. ठीक है, 1 लाख आ गए. देखो 1 लाख आ गए, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 50,000. एज अ रिजल्ट गुडविल इज ₹50,000. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन. गुडविल के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा, फीचर्स पढ़े, टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ी, नीड फॉर वैल्यूएशन पढ़ी, उसके बाद हमने मेथड्स पढ़े, 5 मेथड्स पढ़े. उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ आया. कोई डाउट है अगर आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी उस चीज का. And with this, keep supporting, keep sharing my content with the fellow learners, and do subscribe my channel if you haven't yet. Thank you so much. Have a good day. Bye.